ये वर्कशॉप जो है ये एट द एंड ऑफ द डे उन चीज़ों को एड्रेस करती है जो कि जनरली जब हम काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, तो हम बड़ी हार्ड चीज़ों पे काम करते हैं. आई मीन व्हेन आई से हार्ड थिंग्स, आई मीन we talk about business, we talk about delivering service quality, we talk about sales, we talk about risk management, all these sorts of things. But उसके बीच में जो layers, जाहिर है लोग ये चलाते हैं, और इंसान जो है वो कैसे चलाता है, वो कुछ काम खुद करता है, कुछ काम कुछ और लोगों के थ्रू करता है. दिस वर्कशॉप is if I may targeted to enable those people, organizations at a senior level to implement, to realize and implement things that will help improve the environment of the organization in a way that people actually enjoy coming and working there, feel respected, feel driven, feel boosted, all those sorts of things, feel that they're gaining knowledge. ये हम किस तरह से एक environment को set करें? Mostly my experience has been with the development sector organizations, and since I've practiced as a psychologist and then I've also been in the management of different organizations, so it's given me an understanding of both kinds of issues, what kind of policies, systems and procedures need to be in place to ensure that people feel emotionally safe and you're able to create healthy environments. And if it's a healthy environment, of course our mental health भी somehow आप ensure करते हो उसमें. And then of course working directly with people, उसमें बहुत सेक्टर से लोग आते हैं, उनके क्या प्रॉब्लम्स होते हैं और उनके कितने सारे प्रॉब्लम्स उनकी वर्क प्लेस से रिलेटेड होते हैं. तरह से वर्क कल्चर, क्या इन्वायरमेंट है, लैक ऑफ फीडबैक है, क्लैरिटी नहीं है, हरासमेंट है, किस तरह से लोगों को काम दिया जाता है, काम लिया जाता है, और स्पेशली ऐसे माहौल में जब लोगों के पास ऑप्शंस ही नहीं है एंड पीपल आल्सो नो कि ये कहीं जा नहीं सकते, इन्होंने इधर ही काम करना है, तो चाहे हम जितना भी उनके साथ बदतमीजी करें, बुरा बिहेवियर रखें, डिस्पाइट हैविंग दोज पॉलिसीज व्हिच टॉक अबाउट रिस्पेक्ट, व्हिच टॉक अबाउट all those ethics, people still get away with it because they know that other people are very, very dependent on these jobs. We are talking about, becoming leaders and coaching and mentoring and helping people do their job very well. But फिर हमें एक बिल्कुल एक्सट्रीम ऑपोजिट नजर आता है, जहाँ पे लोग इस अपनी लैक ऑफ मेंटल हेल्थ की वजह से एक एनवायरनमेंट भी ठीक नहीं पैदा करते, और फिर वो जो पूरा कोचिंग का एनवायरनमेंट है नहीं दे पाते, ट्रांसफर ऑफ स्किल जिसको आप कहते हैं. You want to be positive and you want to see the growth of people in front of you who you are managing. In the workshop we will be addressing it at two levels. One is overall right now with the COVID-19 situation, how do you cope, and generally for better mental health, what are some of the things that you can do which can ensure in the long term कि आपकी mental health बेहतर होगी. Initially, like I told you, I practice. So initially one thing I did with all my clients was to ask them how they're feeling, what are they doing, how they're processing, and this is one step that we will also do as part of the workshop, to give people opportunity to share how they're feeling, because वो भी कई दफा नहीं मिलती. The way the time is going right now, if मुझे ये लगता है कि एक बड़ी अच्छी opportunity है कि if you have personal things that you need to settle out, let's say with your spouse, you can, this is the time where you are spending more time together, you guys can actually settle those things out. You can build up on a relationship. आपका relationship अच्छा है, उसको और बेहतर बना सकते हो, because you can actually spend a lot more time together and talk less. इस वक्त मैं तो कहती हूँ इमीडिएटली अगर आप लोग मेंटल हेल्थ इंश्योरेंस नहीं देते, आप दें. देयर आर रिसोर्सेज इवन इन पाकिस्तान, देयर आर हेल्पलाइंस, देयर आर सर्विसेज जो फ्री ऑफ कॉस्ट भी लोगों की इस तरह की एंजाइटी सुनने के लिए हेल्प कर रही हैं एंड उनको सपोर्ट कर रही हैं. और दूसरा ये है कि आप उनकी वर्क स्पेस को कंड्यूसिव बनाएं. आई थिंक इट्स नेसेसरी फॉर मैनेजर्स टू इंश्योर कि जो भी वो मैनेजमेंट स्ट्रक्चर्स अपने काम को चलाने के लिए अब चला सकते हैं इन दिस सिचुएशन, उसको देखें, रीडिफाइन करें और उसको इम्प्लीमेंट करें, और अपनी टीम्स को और अपने लोगों को उसमें एंगेज करें इन अ मेथोडिकल मैनर. एक इंडिविजुअल खुद अपने इश्यूज लेके आता है, तो उसके लिए भी एक कैथारसिस होना भी बहुत जरूरी है कि एक इस चीज के बारे में हम डिस्कस करें. डिस्कस करने से भी बहुत चीजें रिलीज होती हैं.
और दूसरा ये हो कि उनका सोल्यूशन वो हम डिस्कस करें विदाउट पॉइंटिंग फिंगर्स, so that when people go through this workshop they are able to then know कि ओके ये इश्यूज हैं, ये एक्चुअली इशू इस वजह से है और इसको हैंडल मैं इस तरह से कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, और अगर मैं एक चीज को मैनेज कर रहा हूँ, लोगों को मैनेज कर रहा हूँ, तो मेरे एटीट्यूड्स क्या होने चाहिए, और अगर मैं एक पूरे बड़े इदारे को मैनेज कर रहा हूँ तो मैंने क्या चीजें इम्प्लीमेंट करनी है इस इदारे में टू मेक द एंटायर वर्कप्लेस अ हैप्पियर, मोर प्रोडक्टिव वर्कप्लेस। सेल्फ केयर की एक इम्पॉर्टेंट चीज ये कहूंगी कि इस वक्त ओवर इंफॉर्मेशन, मिस इंफॉर्मेशन दैट इज नॉट वेल रिसोर्स्ड, उसके ऊपर आप जितना उसमें घुसेंगे उतना आप अपने आप को मजीद स्ट्रेस करेंगे और अपने लिए लाइफ को कॉम्प्लिकेट करेंगे। सो आप खुद चूज करें 2-3 ऐसी इंफॉर्मेशन की साइट सोर्सेज जो आप ऑथेंटिक समझते हैं और आप उनको उनसे इंफॉर्मेशन लें। मगर सारा वक्त अगर आप इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, सारा वक्त आप पढ़ रहे हैं क्या हो रहा है, क्या हो जाएगा, ये किसने वायरस भेजी, किसको मिल गई, क्या हो गया, इसके पीछे कंस्पिरेसी क्या है, तो ये आपको फर्दर स्ट्रेस करेगी। द रियलिटी इज वेयरएवर इट इज कमिंग फ्रॉम, वेदर इट इज अंडर रिपोर्टेड, misreported, misrepresented, the reality is it is there. ठीक है? So we know of people ourselves who are suffering from it or who have passed away because of it. So we have to just recognize the fact that it is a reality. और अगर हम अपने आप को प्रोटेक्ट समझते हैं कि नहीं करना, तो हमारे रवैये से कोई अनप्रोटेक्टेड ना रहे। सो आई थिंक अगर हम इसको इस तरह से सोचना शुरू कर दें कि हम अगर समझते हैं कि ये गलत बात है, ये तो होता ही नहीं या कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता, मगर आप अपने रवैये से दूसरों को किस तरह इम्पैक्ट कर सकते हो, एंड दैट्स हाउ वी नो दैट it's passed on to people. That's how it's spread. Overall, when we talk about this, we are trying to break taboos, so people and organizations feel comfortable that there is no harm in seeking that support.